اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک کی ذات بابرکات دے۔ آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، انہی کی مناسبت سے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا جو ان کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً پیش کروں گا۔ میں کچھ آج ایسی چیزیں آپ سے شیئر کروں گا جو عام ان کے فضائل مناقب تو آپ نے سنے، کچھ دو تین میں ایسی چیزیں آپ بتاؤں گا کہ جو عام لوگوں نے پہلے سنی نہیں ہوں گی۔ باقی تو آپ نے واقعہ سنے ہی ہے کہ ان کا قبول اسلام کیسے ہے، کہ آئے تو نعوذ باللہ نبی مکرم سرکار دو عالم کو شہید کرنے کے لیے تھے، اور خود آپ کی نگاہوں سے وہ شہید ہو گئے۔ تو جب آئے تو حضرت میر حمزہ بھی بیٹھے تھے، وہاں تشریف فرما تھے، تو پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آنے دو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو موسٹ ویلکم، نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ سیدنا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت شیر تھے، تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے مناقب میں۔ ایک بار نبی پاک سرکار دو عالم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل امین، زمین پہ تو جو عمر فاروق کے فضائل مناقب ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، آسمانوں پہ ان کے فضائل کیا؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ بیان کرنے لگوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل تو مجھے کئی ہزار سال لگ جائیں گے، بہت سارے ان کے فضائل ہیں۔ تو ویسے بھی نبی پاک سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ دو وزیر میرے زمین پہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق، دو آسمان پہ ہیں، جبریل امین اور میکائیل، تو یعنی بہت مقام ہے۔ تو پھر نبی مکرم سرکار دو عالم کی وہ مراد ہے کہ نبی مکرم سرکار دو عالم نے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین عمر ابن خطاب عطا فرما دے اور اس سے اسلام کی عزت بڑھا دے۔ تو پھر جو انہوں نے نبی مکرم کے خادم ہونے کا، غلام ہونے کا حق ادا کر دیا تھا زندگی میں، اپنے جو ان کا وقت تھا دور حکومت، انہوں نے پورے اپنے جو 22 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی، تو آپ نے وہاں عدل و انصاف سے پر کر دیا۔ آپ کے آنے پہ اتنی برکت ہوئی کہ ایک سال کے بعد آپ کی حکومت جب شروع ہوئی ہے تو ایک سال کے بعد آپ نے مختلف وفود جو ہے ان کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ کون کون زکوٰۃ لینے والا ہے، غریب کون ہے ہمارے ملک میں۔ تو ہر جگہ پتہ چلا کہ ایک سال کے بعد کوئی بھی آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے پاس 4-6 مہینے کا راشن پانی ہے، ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، یعنی اتنی خیر و برکت ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت رہی، شیر اور بکریاں جو وہ اکٹھے پانی پیتے تھے، تو ایک دن دیکھا کہ عراق میں ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی بکری کو شیر اٹھا کے لے گیا، تو اس نے کہا لگتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوگی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس نے عرض کی کہ جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت آئی ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شیر نے بکری پہ حملہ کیا، تو آج میری بکری شیر اٹھا کے لے گیا، تو میں نے اس سے ججمنٹ کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو واقعہ وہ وقت صحیح تھا، اس کی ججمنٹ صحیح تھی، اس کی رائے جو بالکل ٹھیک تھی۔ تو ایک بار نبی مکرم سرکار دو عالم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ احد پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئے، تو پہاڑ کو بھی وجد آ گیا، وہ وجد میں یعنی رقص کرنے لگا۔ تو نبی مکرم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ رک جا احد، رک جا، تجھے پتہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو اسی وقت اس نے اپنے وجد کو کنٹرول کیا اور رک گیا۔ تو یعنی نبی پاک سرکار دو عالم نے پہلے فرما دیا تھا، بتا دیا تھا کہ یہ صدیق ہے، یہ عمر فاروق شہید ہوں گے، یہ عثمان غنی بھی شہید ہوں گے۔ تو
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने हुकूमती अमूर के लिहाज से ये बात है कि आपने जब हुकूमत आई तो आपने बहरैन में जो अमीर साहबी को अमीर बना के भेजा, तो वो जब वापस आए तो वहाँ से अखराज जैसे टैक्स की जिसको कहते हैं 5 लाख टैक्स जो है वो इकट्ठा करके लाए। तो आपने मजलिस शूरा बुलाई और सबसे मशवरा किया कि क्या होना चाहिए ये 5 लाख का। तो मुतफ़िका राय ये बनी कि यहाँ से एक कंटिन्यू फ़ौज को डेवलप किया जाए। आपने फिर फ़ौज को डेवलप किया, मुस्तकिल फ़ौज बनाई, कुछ फ़ौज मुस्तकिल बनाई, कुछ रिज़र्व बनाई और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई। फिर आपने ये जो एहतसाब का अमल है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है, ये भी आपके वक़्त में था। आप मुख्तलिफ़ वक़्त में अपने जो गवर्नर होते थे, अमीर होते थे, उनको चेक करते थे मुख्तलिफ़ अपने इंटेलिजेंस की जो सिस्टम आपने बनाया था उससे। फिर ने प्राइस कंट्रोल के लिए भी आपने एक सहाबिया थी, आपने उनको मुंतखब फरमाया कि आप प्राइस कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी चेक जो करनी है बाज़ार में चीज़ों की, उस पर आप मुतय्यन फरमाया कि सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। यानी अकाउंटेबिलिटी का भी सिस्टम आपने डेवलप किया, दफ्तरी निज़ाम आपने डेवलप किया, बैतुल माल का आपने सिस्टम डेवलप किया कि पहले पूरे सल्तनत से टैक्स इकट्ठा होता जो अखराज उस वक़्त कहते थे, फिर आप मुख्तलिफ़ जगह में वो तकसीम फरमाते और देखते। फिर आपने मदीना शरीफ में बाकायदा एक सहाबिया थी हज़रत रफ़ेदा, उनको बाकायदा एक डॉक्टर के तौर पे नामज़द किया अस्पताल, यानी वो नर्स और डॉक्टर दोनों के फ़राइज़ सार अंजाम देती थी जहाँ लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे। इस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जो आज का महकमे देख रहे हैं ना, ये सारे महकमे अकाउंटेबिलिटी का, प्राइस कंट्रोल का, ये क्वालिटी चेक का, उसके बाद फ़ौज का, पुलिस का, फिर बैतुल माल का, जो भी अभी सिस्टम चल रहे हैं, ये वो सारे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इनको डेवलप किया, इनको बनाया। फिर बाकायदा हर चीज़ को एक तरतीब से चलाया और अकाउंटेबिलिटी में बहुत सारे आपने अच्छे काम किए, बहुत सारे डेवलपमेंट की। तो आपने कितने ही अमीरों को सस्पेंड भी किया कि पता चला कि फ़लाँ अमीर है, एक पता चला एक अमीर का कि उसने नौकर चाकर रखे हुए घर में, यानी जैसे प्रोटोकॉल के लिए। तो आपको जब पता चला तो आपने फ़ौरन उसको वापस बुलाया और आपने बोला कि आप तो इंसानों पे हुकूमत कर रहे हो, इंसानों पे क्या, आप तो हैवानों के ऊपर भी करने के काबिल नहीं। तो उसके बाद फिर एक और अमीर था, उसकी शिकायत मिली कि अक्सर कोई सवाली जाता तो उनका दरवाज़ा बंद रहता है, तो आपने उनको भी सस्पेंड कर दिया। कहा कि मैंने आपको हुक्म दिया कि दरवाज़ा कभी नहीं बंद होना चाहिए, 24 घंटे जो साइल है वो आ सके, आपको अपना दुख जो है, मुसीबत जो है वो बयान कर सके। फिर आपने एक यहूदी को देखा कि वो मांग रहा था, तो आपने पूछा कि भाई आप क्यों मांग रहे हो? बोला जवानी में ये था, फलां था, ऐसा मेरा मसला है, मैंने कुछ टैक्स भी देने होते मेरे से, तो वो दे नहीं मैं सकता। तो आपने फिर ओल्ड एज होम है ना, जो बूढ़े लोगों के लिए, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इसको डेवलप किया और बनाया, जो आज दिन तक चल रहा है। फिर औरत को वोट देने का जो हक है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में असम्बली में औरत जो थी वो मेंबर थी। एक फ़ैसले में फ़ैसला जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया तो सहाबिया उठ के खड़ी होगी, उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी और कहा कि आप ये फ़ैसला कुरान मजीद के मुताबिक नहीं कर रहे। तो आपने कहा बेशक औरत ने सही हक पहचाना, उमर भूल गया, तो आपने उसके फैसले को माना। आज जो यूरोप कह रहा है कि मैं इंसानी हकूक़ का बड़ा अलमदार है, हाँ तो 100-120 साल पहले वोट देने का हक है, तो उस वक़्त 1400 साल पहले भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के वक़्त में सहाबिया मौजूद थी जो असम्बली में नुमाइंदगी करती थी, और हर शोबा जात का आदमी, हर कबीले का आदमी आपकी नुमाइंदगी में था। तो कैसा कुसरा जो शाम था, मुल्क शाम था, ईरान था, वो तो आप लरजते थे, तो आपका नाम सुन के वो लरस जाते थे। तो एक बार उन्होंने कहा, एक खादम को भेजा अपने गुलाम को कि जाओ जाके ज़रा उमर फ़ारूक को चेक करो, उसका महल कैसा है, रहना बहना कैसा है। तो जाके उसने मदीना शरीफ में पूछा कि उमर जो तुम्हारा अमीर है उसका महल कहाँ? उन्होंने कहा वो जो देख रहे हो ना, वो
कच्चा सा कोठा जो है, वो जो मकान है छोटा सा जो तिनकों से बना हुआ है, वो है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का महल। वो तो समझा था कि जैसे हमारे बड़े बड़े महल्लात होते हैं ऐसे होंगे, तो फिर उन्होंने कहा मिलेगा नहीं, उधर मिलेगा तुम्हें कहीं मस्जिद नबी करीब। तो देखा तो आप मस्जिद नबी में आराम फरमा रहे थे या बैठे हुए थे, तो उसने आके बताया और पूछा, तो आपने कहा हाँ बेशक मैं उमर फ़ारूक। उसने कहा 2-3 चीज़ें, वो कुछ हदिया लाया, कुछ वो एक बड़ा कीमती खुशबू की शीशी थी वो लाया, एक बड़ी जहरीली जहर की शीशी थी वो लाया, तो एक लड़की लाया था वो, तो आपने बुलाया किसी आदमी को, बोला इससे शादी कर दो, उसको दे दी। जो खुशबू वाली शीशी थी, आप मस्जिद नबवी का दीवारें और छत जो है ना, वो पोंछने के लिए मट्टी गूंद रहे थे, जिसको पंजाबी में कहानी कहते हैं, वो कहानी कर रहे थे। तो आपने वो खुशबू की शीशी उसमें डेल दी, कहा कि अगर ये बहुत कीमती है तो फिर अल्लाह के घर से ज़्यादा तो इसका कोई भी मुस्तहिक। तो वो जो खुशबू वाली शीशी हो तो उसमें डाल दी मट्टी में, और जो शीशी थी जहर की, कहते कि इससे कई हज़ार इंसान जो वो मार सकते हैं, तो वो शीशी आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के तो पी ली, तो वो तो लर्जने लगा। जब शीशी आपने वो पी ना जहर वाली, तो वो तो खादम लर्जने लगा कि अभी तो ये इनके नाउज़ुबिल्लाह मौत हो जाएगी। तो आपने कहा कि कुछ नहीं, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल ठीक रहे। तो आपकी फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपने वक्त में डेवलप की। तो एक बार और भी एक वाक़या के बस्ती से दूर एक आदमी था, मुसाफिर था, उसके बीवी को कोई बच्चा पैदा होने वाला था, तो आप वहाँ गए, तो आपने सारी उसकी अपनी बीवी को साथ में ले गए। तो वहाँ जाके उसने जो भी सिस्टम था उस वक्त डिलीवरी का वो करवाया। तो उसके बाद जब उनकी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की बीवी ने आवाज़ दी कि अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो आपके भाई को, आपके दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो वो लरज़ गया आदमी, कहने लगा वो ये अमीरुल मोमिनीन है, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। तो यानी इतनी सादगी से उन्होंने ज़िंदगी बसर की। फिर और वाक़या कि एक दिन रात को गश्त लगा रहे थे मदीना शरीफ में, तो एक घर से आवाज़ आई कि बेटी दूध में पानी मिला लो। तो बेटी कहने लगी कि नहीं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि पानी नहीं मिलाना दूध में। तो माँ ने कहा कि उमर फ़ारूक कौन सा देख रहा है? तो उन्होंने बेटी ने कहा उमर फ़ारूक तो नहीं देख रहा, तो उमर फ़ारूक का खुदा तो देख रहा है। तो आपने अपने साथ वाले खादम को कहा इस घर को याद रखो, और सुबह फिर आपने उस घर वालों को बुलाया और अपने एक बेटे की शादी उस बेटी से कर दी। और बार बार कहते थे, जब बहू बन गई ना, तो बार बार ये कहते थे कि मुझे वो बात सुना। तो फिर वो कहती थी कि उमर फ़ारूक तो नहीं देख रहे, लेकिन उमर फ़ारूक का खुदा तो देखता है ना। तो फिर आप ज़ारों कतार रोते। इसी लड़की की नस्ल से फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए थे, जिन्हें उमर सानी कहा जाता। उन्होंने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर की याद ताज़ा कर रही थी, अपनी पूरी सल्तनत को अदलो इंसाफ से भर दिया था, अदलो इंसाफ का बोल बाला कर दिया। ऐसे उनके वाक़यात हैं कि जो बयान करने लगो तो दिल नहीं करता कि ख़त्म हो, और ख़त्म होते भी नहीं हैं। आपके बेशुमार वाक़यात हैं। जब आपकी शहादत होनी थी तो ये नहीं कि आप बेखबर थे। खबर की तो ऐसे बात है कि नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद अगर किसी ने नबी होना होता या कोई नबी आना होता तो उमर फ़ारूक होते। बाद रवायतों में ये आता है कि कुछ लोग बनी इसराइल में थे जो नबी नहीं थे, लेकिन फरिश्ते उनसे बात करते थे, यानी उन पे इल्हाम होता था। वो भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से मंसूब किया जाता कि वो आप ऐसे आदमी थे, ऐसी शख्सियत थी कि जिनसे फरिश्ते बातें करते थे। और भी अल्लाह पाक ने आपको बहुत अनायात फरमाई थी। एक बार जंग का वक़्त था, तो 1800 किलोमीटर तकरीबन निहावंद में हज़रत इब्ने सारिया रज़ी अल्लाह ताला जो वो जंग को लीड कर रहे थे, अमीर थे लश्कर इस्लामी के। तो आप जुमा पढ़ा रहे थे, तो जुमे में आपने बोला कि या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल 3 बार कहा। तो हज़रत अली, मौला अली भी सरकार जलवा फरोज थे, तो उनके साथ भी एक आदमी था, तो वो बैठा। तो कहने लगे अली ये उमर फ़ारूक को क्या हो गया, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ये क्या कह रहा है? मौला अली तो अहले नज़र थे, उन्होंने कहा चुप कर जा,
ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ, क्योंकि मौला अली भी वो देख रहे थे जो वो देख रहा। तो बाद में फिर लोगों ने सवाल किया कि या हजरत ये क्या जुमे में आपने कहा कि या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल, इस ये तो कोई रिलेटेड चीज़ नहीं थी, मुंसलिक चीज़ नहीं थी खिताब से। तो फिर आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा आपको पता चलेगा। फिर जब हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की ये बात सुनी तो आप एकदम यानी अलर्ट हो गए। तो आपने कहा कि दाएं बाएं देखो, तो देखा तो एक लश्कर कुफार का छुप के बैठा था, जिन्होंने घात लगाई हुई थी, उन्होंने लश्कर इस्लामी पे वार करना था, हमला करना था। तो आपने फिर जब पता चल गया तो आपने पलट कर वार किया, फिर आपको फतह हो गई, अल्लाह पाक ने फतह नसीब फरमाई। फिर जब वो वापस आए तो तब वो बात खुली। तो हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते अगर वो उस दिन मुझे उमर तंबीह नहीं करते, मुतनब्बे नहीं करते, तो हो सकता कि इस लश्कर इस्लामी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। तो यहाँ मैं एक बात ज़िमनी तौर पे बयान करना चाहूँगा कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की इतनी एक्सेस है कि 1800 किलोमीटर पे होने वाले वाक़यात को खुतबा देते हुए देख रहे हैं, और उस नबी का क्या आलम है जो कुल नबियों के नबी हैं, जो सैयदुल अंबिया है, उनका आलम इल्म का क्या होगा। तो नबी पाक सरकार ने तो फरमाया, ये हदीस एक है, मैं इसी पे ख़त्म करूँगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, एक बार नबी मुस्तफ़ा सरकार दो आलम नबी मुहतशम नबी रहमा जो है वो मिंबर पे जलवा फरोज़ हुए, तशरीफ़ फरमा हुए। तो अज़ल से लेके अबद तक, जहाँ से दुनिया शुरू हुई वहाँ से लेके जहाँ तक दुनिया ने ख़त्म होना, आखिरी आदमी के दोज़ख और जन्नत में जाने तक सब कुछ नबी मोहतरम ने फरमा दिया, सब कुछ बता दिया। बस जितना किसी ने याद कर लिया वो हाफज हो गया उतने का, जो कोई भूल गया वो सो भूल गया। तो देखो वक़्त भी ज़ोर से मगरब तक है, थोड़े से वक़्त में कायनात की हर चीज़ बयान कर दी। तो नबी पाक को हम इस तरह कहते हैं टर्म जो इल्मे गैब की, हम इल्मे गैब की टर्म नहीं इस्तेमाल करते। सरकार दो आलम के लिए हम अर्ज़ करते हैं कि नबी पाक सरकार को मतला अल गैब, जो भी नबी पाक सरकार है उनको अल्लाह पाक ने अपनी जितनी गैबी चीज़ें वो अल्लाह पाक ने बता दी थी, हमारे लिए गैब है। नबी पाक सरकार को उन गैब पे आपने मतला फरमा दिया था। तिरमिज़ी शरीफ की भी हदीस है कि एक दिन नबी मुकरम सरकार दो आलम थोड़ा लेट नमाज पढ़ाने के लिए आए, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह आज आप नमाज थोड़ा लेट पढ़ाने के लिए आए। तो आपने फरमाया कि मैंने तहज्जुद पढ़ी और मुझे ऊँग आ गई, तो मैं वहाँ ही मसल्ले पे लेट गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह की ज़ात अपनी शान के मुताबिक जलवा फरोज़ होती है और फरमाती कि है मेरे हबीब, अर्शों पे फरिश्ते किस बात पे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैंने आवाज़ सुनी है, लेकिन बात किस मौजू पे कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ से कुछ लोग कहते देखो जी पता नहीं, अगर नबी को पता नहीं है नबी पाक से तो अल्लाह पाक ने सवाल क्यों किया, ये बात नहीं है। ये नबी पाक की शान बहुत बुलंद है इससे। ये तो इल्म छोटे इल्म गैब, इल्म छोटे छोटे इल्म ख्वातर वगैरह ये तो छोटे हैं, ये तो नबी पाक के खादमों को भी अल्लाह पाक ने कर दिए। खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लो, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के साथ जो है वो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बात है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात बाबरकात आ गई, तो अल्लाह की ज़ात ने अपना दस्ते शफ़क़त जो है मेरे दो कंधों के दरमियान रखा, उसकी ठंडक मुझे सीने में महसूस हुई। तो अज़ल से लेके अबद तक जो कुछ होना है, जो कुछ हो चुका है, जो पैदा होना है, जो कुछ पैदा होना है, कोई काफिर हो पैदा होगा, मुसलमान पैदा होगा, दोज़ख में जाएगा, जन्नत में जाएगा, सब अल्लाह पाक ने मुझे बता दिया। तो ऐसे मौके, एक मौके पे अल्लाह ने सब कुछ बता दिया, तो हज़ारों मरतबा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को ऐसे मौके जो है वो अता फरमाए थे। तो नबी पाक की शान जो है इससे बहुत बुलंद है। तो ये नबी पाक के तो खादमों को भी ये इल्म है। तो जो इस मसलक को नहीं मानते, नबी पाक की इस शान को नहीं, इल्म मतला अल गैब को मानते, उनका भी ये मानना है। मुझे उन आलम का भी पता है, वो दूसरे मसलक से, हमारे मसलक से नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ से हज़रत सारिया को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की आवाज़ जो है वो ओपन होके सुनाई गई एक गार से, बड़ी देर तक लोग उस गार से तबर्रक लेने के लिए, बरकत लेने के लिए वहाँ जाया करते थे। ये वो कह रहे हैं
جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن حق تو حق ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چکیاں بناتا تھا، تو وہ ملنے آیا، آپ نے پوچھا بھی کیا حال چال ہے؟ اس نے فرمایا جی کام شام تو ٹھیک ہے، لیکن میرے اوپر اخراج بہت زیادہ، 2 دینار ایک چکی بناتا 2 دینار دینے پڑتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، آپ کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کے جو مالک ہے، جو آپ کا آقا ہے، اس سے میں بات کروں گا۔ تو اس نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بھی ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ مجھے شہید کرے گا۔ تو پھر آپ مسجد میں صفیں سیدھی کروا رہے تھے، نماز میں تھے کہ وہ ابو لولو جو ہے وہ صفیں چیرتا ہوا آیا، اس نے خنجر سے وار کیے 3-4 اور آپ کو زخمی کر دیا۔ پھر بھی آپ نے نماز مکمل کی، ساتھ میں دوسرے صحابی کو آگے کر کے نماز مکمل کروائی، اور پھر اسی وقت 6 آدمی آپ کے ساتھ اور بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو پھر نبی پاک سرکار نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین عمر کہہ رہا ہے، نہیں کہنا عمر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے نبی پاک سرکار کے پہلو میں آرام کے لیے جگہ دے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ اس نے اتنا عدل کیا ہے کہ میں اس کے عدل سے خوش ہو کے اپنے حق کو وڈرا کرتی ہوں اور عمر کو حق دیتی ہوں۔ 4 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوگی 24 ہجری کو، 1 محرم 24 ہجری کو۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا چمکتا ہوا ستارہ اور یہ سپوت جو تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبریں منور فرمائے۔ جس طرح دنیا میں وہ نبی پاک سرکار فرماتے تھے کہ میں وہاں نکلا، عمر فاروق اور ابا بکر صدیق میرے ساتھ تھے، میں وہاں گیا، ابا بکر صدیق اور عمر فاروق میرے ساتھ تھے، اسی طرح آپ نے قیامت تک اپنے دامن میں ان کو رکھا، جیسے دنیا میں ویسے ہی آخرت میں۔ اللہ پاک ان تمام ہستیوں کے صدقے ہماری مشکلات جو ہے ان کو اللہ پاک کم کرے، اور یہ جو بیماری اس وقت جاری ہے اللہ پاک اس کو بھی دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔